Hello, friends. How are you all doing? My name is Dr. Neelam Parwani. I'm a Reiki Grandmaster, Advanced Sujok Therapist, a naturopath, and a positivity coach, and founder of Nature's Grace. And today I'm on this platform for a very unique session on a very simple but very effective topic that is known as meditation. We are going to talk about what exactly meditation is, why is meditation required, and what are the benefits of meditation. As we all know, we all have been doing meditation in some or the other form. Either we do it alone or we do it in groups. हम बचपन से लेकर अभी तक कभी ना कभी हम सब ने तो मेडिटेशन किया ही है, या तो किसी इवेंट में जाके किया है या कभी हमने कोई कोर्सेज किए हैं उसके द्वारा किया है. And some of them being in the healing therapies do it every day also. So what exactly is meditation and why it is important to do meditation, and how can we do meditation in an effective manner to have maximum benefits of it? So let's wait for a couple of minutes. When the people start joining in, we can start the session. This session is more going to be a question and answer session. In case if you want to have any questions, please post it in the comment box and I will go ahead and answer those questions based on whatever are your concerns. So, as we all know, meditation is a very old therapy. पुराने ज़माने से आदि युगों से लोग ध्यान या मेडिटेशन करते आ रहे हैं. इनफैक्ट पिछले ज़माने में तो ये भी कहा जाता था कि हमारे जो योगी मुनि वगैरह हैं वो सालों साल तक ध्यान की मुद्रा में खोए रहते थे. दे यूज टू बी इन डीप मेडिटेटिव स्टेट फॉर ईयर्स ऑल टुगेदर. और उनको अगर किसी भगवान को प्रसन्न करना होता था तो दे बी मेडिटेटिंग फॉर ईयर्स, जब तक कि वो ईश्वर उनसे प्रसन्न हो जाए और उन्हें उनका मनचाहा वरदान न प्राप्त हो. So if we can also say meditation is a way to manifest our desires. Yes, it does help in manifesting our desires because that's what we have learned over the years and we have observed people doing it over the years. So that is also one very important feature of meditation is manifestation of desires can be done through proper meditation processes. Okay, so just give me a minute and let's see who all is joining in so we can go ahead and start the process. Okay, so let's talk about meditation. Meditation होता क्या है? मेडिटेशन एक बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है जिसे हम यूजली या करने का जो सही तरीका होता है वो होता है अर्ली मॉर्निंग. जब आप नींद में से उठते हैं तो सबसे पहले अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो दैट इज़ द राइट टाइम. अब जो राइट फेज होता है मेडिटेशन का वो होता है सुबह को 3 से लेकर 5 बजे के बीच में, क्योंकि उस ड्यूरेशन को हम अमृत वेला कहते हैं. That is the time when your hormonal secretion is maximum. That is the time when the positive energies in the environment is maximum. And that is the time which is the best time to do meditation. Now, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान 3 से 5 के बीच में उठ के मेडिटेशन कर सके. So in that case, whichever time is feasible for you, you can do meditation in that time duration. आपको जो भी वक्त सही लगता है आप उस वक्त में वो मेडिटेशन का प्रोसेस कर सकते हैं. अब मेडिटेशन का प्रोसेस करने के कुछ सिंपल रूल्स होते हैं. सबसे पहला रूल ये होता है कि आप जब भी मेडिटेशन करें आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो बैक है, आपकी पीठ है, आपकी रीढ़ की हड्डी जो है, योर स्पाइनल कॉर्ड शुड बी स्ट्रेट. Now, why it is required that whenever you are doing meditation, you should be sitting in the straight position? Because all your chakras are based on your spinal cord. आपके सारे चक्रास आपके स्पाइनल कॉर्ड पे बेस्ड है and those chakras are the energy centers of your body. तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम अपनी एनर्जी सेंटर्स को एक्टिवेट कर रहे होते हैं. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जब भी मेडिटेशन करें, हम जहाँ पे भी बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं हमारी पीठ उस वक्त स्ट्रेट होनी चाहिए. वी शुड नॉट बी स्लाउचिंग. हमारी पीठ किसी भी तरीके से स्लाउच नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं. अगर आपको नीचे बैठने में तकलीफ होती है तो आप चेयर पे बैठ के भी मेडिटेशन कर सकते हैं या बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए मेडिटेशन करते वक्त. सो दैट्स द फर्स्ट
थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड टू डू मेडिटेशन। दूसरी बात, हम जब भी मेडिटेशन करते हैं हमें ये देखना चाहिए कि हम किसी शांत जगह पे मेडिटेशन कर रहे हैं, हमारे आसपास शांति हो। अगर रूम में भी हैं तो दरवाज़ा बंद कर लें, क्योंकि जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं तब बाहर की आवाज़ें अगर आएंगी तो उससे हमारा ध्यान भंग होगा और हमारे मेडिटेशन में दुविधा होगी। इसलिए वी शुड लुक फॉर अ पीसफुल एनवायरनमेंट टू मेडिटेट। यू कैन इवन मेडिटेट इन द ओपन एनवायरनमेंट लाइक अ गार्डन, जहाँ पे फ्रेश हवा है। अर्ली मॉर्निंग में आप जाके बैठ सकते हैं, अपनी बालकनी में बैठ सकते हैं, अपने रूम में बैठ सकते हैं, लेकिन आप जहाँ भी बैठे हो वहाँ इतना ध्यान रखें कि थोड़ी शांति बनी हुई है। दैट इज़ द सेकेंड रूल ऑफ मेडिटेशन। द थर्ड रूल ऑफ मेडिटेशन इज़ कि आप जिस भी तरीके का मेडिटेशन कर रहे हैं, जिस भी शब्द का चिंतन कर रहे हैं, आप जब उस शब्द का चिंतन कर रहे हों तो ट्राई टू डू अ लिटिल लाउडर मेडिटेशन। जैसे अगर आप ओम चैंटिंग कर रहे हैं तो ज़ोर से बोलें ताकि आपकी आवाज़ यहाँ पे आपके थ्रोट में गूंजे। अगर आप गायत्री मंत्र बोल रहे हैं तब भी थोड़ा ज़ोर से बोलें। जब हम थोड़ा ज़ोर से अपनी आवाज़ से वो मंत्र बोलते हैं, इट क्रिएट्स द साउंड वाइब्रेशंस इन योर बॉडी। आपके बॉडी में उस साउंड की वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं, आपके थ्रोट में उस साउंड की वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं। इनफैक्ट मेडिटेशन इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम थायराइड, क्योंकि जितनी वाइब्रेशंस आपके थ्रोट में, आपके थ्रोट चक्रा में क्रिएट होगी, उतना ही आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस होता है। So your meditation can actually be a tonic or a medicine for your thyroid also. तो आप जो भी मंत्र बोलते हैं बेसिक मेडिटेशन में, अगर आप सिर्फ ओम बोलते हैं तब भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ओम इन इटसेल्फ इज द मोस्ट पॉजिटिव वर्ड विद द मैक्सिमम पॉजिटिव एनर्जी। अगर आप ओम बोल रहे हैं या आप कोई भी मंत्र का जाप कर रहे हैं, उसको थोड़ा जोर से बोलिए। नाउ द फोर्थ थिंग विच इज रिक्वायर्ड इन मेडिटेशन। लोगों को अक्सर ये लगता है कि जब हम मेडिटेशन में बैठे हैं या जब हम ध्यान में बैठे हैं तो हमारा दिमाग कहीं और भटकना नहीं चाहिए। वेल, प्रैक्टिकली इट इज़ जस्ट इम्पॉसिबल। आपके विचार तो आएंगे ही आएंगे, चाहे आप किसी भी तरीके का मेडिटेशन क्यों ना कर रहे हो। मेडिटेशन का प्रोसेस आपके विचारों को रोकने के लिए नहीं होता। मेडिटेशन का प्रोसेस आपके अंदर ये अवेयरनेस पैदा करने के लिए होता है कि आपके विचार किस तरीके के हैं। हम पूरे दिन भर में हज़ारों तरीके के विचार देते हैं जिनकी तरफ हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता। We never realize, are we thinking positive, are we thinking negative, which direction is our thought process. So meditation is the time where you can give a thought and realize what kind of thought processes you get usually in your mind. उस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा इस चीज़ की अवेयरनेस हो सकती है कि मेरा थॉट प्रोसेस कैसा है, मेरे मेजॉरिटी ऑफ थॉट्स कैसे आते हैं। जब भी मैं शांत होता हूँ तब मैं किन किन चीज़ों के बारे में सोचने लगता हूँ, and that could be the root cause of your problems in life. So meditation also is a time where you can figure out what are the thoughts you have and how you can correct those thoughts to make your life better. तो इसलिए आप ये कभी भी मत सोचिए कि मैं मेडिटेशन नहीं कर सकता, मैं ध्यान में नहीं बैठ सकता क्योंकि मेरा दिमाग तो इधर उधर भटकता रहता है, विच इज़ वेरी नेचुरल। क्योंकि दिमाग है तो सोच तो होगी, सोच है तो विचार तो आएंगे ही आएंगे। तो इन विचारों को आने दीजिए और जाने दीजिए। मेडिटेशन के टाइम में हमें सिर्फ इन विचारों को देखना है कि वो किस डायरेक्शन से आ रहे हैं और किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। किस तरीके के विचार आ रहे हैं हमारे दिमाग में, किस तरीके के विचार जा रहे हैं हमारे दिमाग से। तो उस वक्त हम एक स्पेक्टेटर के जैसे सिर्फ अपने विचारों को देखते हैं, उनमें इन्वॉल्व नहीं होते। ओके, सो अगर आपको लगता है कि मैं सिर्फ इसलिए मेडिटेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे विचार आते हैं, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस इज द टाइम वेयर यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस यू हैव। तो उन विचारों को आने दीजिए। मेडिटेशन डज नॉट से एनीवेयर कि जैसे ही आप मेडिटेशन करने बैठेंगे आपको कोई विचार नहीं आएंगे, ये कहीं पे भी नहीं लिखा। सो रिमूव दैट मिथ फ्रॉम योर माइंड। नाउ द फिफ्थ important thing which we need to take care of while we are doing any kind of meditation is our breathing pattern. जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन चालू करने से पहले
3 से 4 बार आप डीप ब्रीदिंग करते हैं और मेडिटेशन ख़त्म करने के बाद भी 3 से 4 बार हमें डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। वो इसलिए करते हैं क्योंकि मेडिटेशन का प्रोसेस बहुत ही एनर्जेटिक प्रोसेस होता है। उसमें हमारी एनर्जीज एक्टिवेट हो रही होती हैं। तो अगर हम कहीं से भाग के आए हैं, जल्दबाजी में आके बैठे हैं, या हम कोई और काम करते करते हमें रियलाइज हुआ नहीं हमारा मेडिटेशन का टाइम हो गया, हम आके बैठे हैं, तो वी नीड टू फर्स्ट रिलैक्स, डू 3 to 4 times deep breathing exercise and then start the meditation. द सेम वे जब हम मेडिटेशन ख़त्म कर देते हैं उस वक्त भी हमारे चक्रास बहुत एक्टिवेटेड होते हैं, हमारे अंदर के एनर्जी लेवल्स बहुत हाई हो रहे होते हैं। कई बार हम बहुत इमोशनल भी हो जाते हैं मेडिटेशन करते वक्त, बिकॉज आर इमोशंस आर गेटिंग एक्टिवेटेड। तो जैसे ही मेडिटेशन ख़त्म हुआ, अगेन डू 3 to 4 times डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज बिफोर यू फिनिश योर मेडिटेशन। सो अगर आप देखेंगे तो हर एक रूल के साथ एक एक बेनिफिट जुड़ा हुआ है जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं। मेडिटेशन करने का एक प्रोसीजर इसलिए बना है क्योंकि उस प्रोसीजर के साथ हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। जब भी हम मेडिटेशन करते हैं उस वक्त अगर हमारे को कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम है, कोई भी फिजिकल एलिमेंट है, और हम अपना ध्यान उस बॉडी ऑर्गन की तरफ केंद्रित करते हैं, तो ऑटोमेटिकली मेडिटेशन से जनरेट हुई हुई एनर्जी उस तरफ डाइवर्ट होने लग जाती है एंड वी स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ हीलिंग। हम ऑटोमेटिकली अपनी फिजिकल हीलिंग चालू कर देते हैं मेडिटेशन करते वक्त। तो अगर आपको पेट में दर्द है, पीठ में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो जब भी आप मेडिटेशन कर रहे हैं उस वक्त अपना ध्यान उस तरफ लगाइए और विजुलाइज कीजिए कि आपकी मेडिटेशन के द्वारा एक्टिवेट की गई एनर्जी सारी आपके उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम एरिया में जा रही है और उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर रही है। एंड एज वी थिंक, एज द एनर्जी मूव्स, so if you align it in the right process, in the right manner, it will start moving in that direction and your healing will start. मेडिटेशन करने के बाद कई बार हम लोगों को नींद आती है, which is the best time to take a power nap. जब भी आप मेडिटेशन करें उसके बाद अगर आपको नींद करने की इच्छा हो रही है तो 10 से 15 मिनट सो जाइए। वो जो 10 से 15 मिनट की नींद होती है वो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जाइज करती है। अगेन द एनर्जीज आर वेरी एक्टिवेटेड, इमोशंस हैव कम टू द सरफेस। तो उस वक्त अगर हम सो जाते हैं तो हमारी सारी एनर्जी बहुत इजीली हमारे बॉडी में सेटल हो जाती है एंड देन व्हेन वी गेट अप वी फील रियली फ्रेश एंड रिचार्ज्ड। कई बार जो लोग शुरू शुरू में मेडिटेशन करना चालू कर रहे हैं और पहली बार कर रहे हैं, दे कुड बी अ पॉसिबिलिटी जब वो मेडिटेशन करते हैं तो उसके बाद वो 2 से 3 दिन उनके इमोशंस बहुत हाई हो जाते हैं, क्योंकि हमने बहुत बहुत सालों के बाद पहली बार अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश की है। तो ऐसे में वो सारे इमोशंस, चाहे वो गुस्से के हों, प्यार के हों, दुख के हों, एंगर के हों, रिजेंटमेंट के हों, बाहर आने लग जाते हैं, क्योंकि जब तक वो बाहर निकलेंगे नहीं तब तक एनर्जी बैलेंस होगी नहीं। तो अगर इनिशियल 2-3 दिन आप चिड़चिड़े हो रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है या आप बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, तो डोंट वरी, दैट इज़ द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन विथ योर इमोशंस, ऑफ बैलेंसिंग योर इमोशनल एनर्जी। इसका ये मतलब नहीं है कि मेडिटेशन आपको सूट नहीं किया ये, या मेडिटेशन के ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इट्स जस्ट अ प्रोसेस वे यू आर चैनलाइजिंग योर energy and your emotional energy is coming to the surface and all the strong negative emotions will start coming out. So the whole purpose of the meditation is कि हम अपने दिमाग को शांत करें, अपने मन को शांत करें और एक पीसफुल लाइफ जिए। तो उस दिमाग और मन को शांत करने के प्रोसेस में जो भी नेगेटिव इमोशंस है उनका निकल के आना बहुत ज़रूरी है। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको 1-2 दिन लग जाए इमोशनली सेटल होने में। इस प्रोसेस को करते वक्त आप हो सकता है थोड़े ज़्यादा इमोशनल हो जाएं, गुस्से में आ जाएं, बट दैट्स परफेक्टली फाइन। 2-3 दिन में आपके वो इमोशंस बैलेंस होने लगेंगे एंड यू विल स्टार्ट सीइंग द बेनिफिट्स। Now there are a couple of benefits which I can directly tell you. एक, आपके स्लीप पैटर्न्स बहुत अच्छे हो जाएंगे जैसे ही आप मेडिटेशन के प्रोसेस को चालू कर देंगे। अगर आपको इंसोमिया की बीमारी है, अगर आपको डिस्टर्ब स्लीप होती है, तो मेडिटेशन इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर दैट।
इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम थायराइड, मेडिटेशन इज द बेस्ट रेमेडी फॉर दैट। जैसे ही आप ऊंचे साउंड में किसी भी मंत्र का उच्चारण करेंगे, यू विल क्रिएट अ वाइब्रेशनल एनर्जी ऑन योर थ्रोट, ऑन योर थायराइड ग्लैंड, एंड इट स्टार्ट्स गेटिंग बैलेंस्ड। आपको एनर्जेटिकली पूरे दिन में अपनी एनर्जी लेवल्स हाई मिलेंगी जैसे ही आप मेडिटेशन करना चालू करते हैं, क्योंकि मेडिटेशन के बाद अगर आप 10 से 15 मिनट का पावर नैप लेते हैं और तब जब आप उठेंगे तो आप पूरे दिन भर बहुत ही फ्रेश महसूस करेंगे। फोर्थ, जैसे ही आप मेडिटेशन के प्रोसेस से जुड़ते चले जाएंगे, धीरे धीरे आपको ये पता चलता जाएगा कि आपके अंदर की एग्रेसिवनेस और एंगर कम होता जा रहा है। अब आपका रिएक्शन उन सारी सिचुएशन पे उतना एग्रेसिव और उतना स्ट्रांग नहीं है जितना पहले होता था, बिकॉज योर एनर्जी इज गेटिंग बैलेंस्ड। आपके नेगेटिव इमोशंस निकलते ही आपकी नेगेटिव एनर्जी बॉडी में कम होने लग जाएगी, and you will start moving towards the neutral phase. फोर्थ, मेडिटेशन का ये बेनिफिट है कि आप जब मेडिटेशन करते हैं, यू गेट टू रियलाइज द काइंड ऑफ थॉट प्रोसेसेस यू हैव। हम कहने को तो ये कह सकते हैं कि हम सब बहुत पॉजिटिव हैं और हम सबका अच्छा सोचते हैं, लेकिन हमारी सोच क्या है, पूरे दिन भर में हम किस तरीके के विचारों का आदान प्रदान करते हैं अपने दिमाग में, आर वी constructively thinking positive or constructively thinking negative, what are the majority of our thoughts. During the time of meditation, that realization and awareness starts developing in us. So that's the fourth benefit. The fifth benefit of meditation is, if you are sitting in the right posture, your back also starts healing. So if you are doing meditation by sitting straight on your back, energy का balance आपके back में भी सही होने लग जाता है। स्पेशली पीपल आर सफरिंग फ्रॉम बैक पेन, सर्वाइकल एंड ऑल, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। द ओनली थिंग इज यू हैव टू मेक श्योर आप लॉन्ग ड्यूरेशंस के मेडिटेशन ना करें। व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर मेडिटेशन, keep it for 10 to 15 minutes only. At the max you can stretch it to 30 minutes. उससे ज़्यादा का मेडिटेशन उन लोगों के लिए बेनिफिशियल नहीं है जिनको बैक इश्यूज है, बिकॉज दे आर नॉट सपोज टू सिट इन दैट पोजिशन ऑल्सो फॉर अ लॉन्गर टाइम। बाकी लोगों के लिए उनके कंफर्ट के हिसाब से आप 30 मिनट्स का मेडिटेशन करें या 45 मिनट्स का। इवन इफ यू आर डूइंग 20 to 30 minutes of meditation daily, that is more than enough to get the benefits of meditation. Now let's do a quick recap of the rules of meditation and the benefits of meditation. So the rules of meditation is, whenever you are doing meditation, you need to sit straight. Your spine should be straight, चाहे आप चेयर पे बैठे या बेड पे बैठे। आप जब भी मेडिटेशन करें, मेक श्योर यू आर डूइंग इट इन अ क्वाइट एनवायरनमेंट, आपके आसपास शांति बनी हुई है। थर्ड इज, वेन एवर यू आर डूइंग मेडिटेशन, आप जिस भी मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं उसको थोड़ा लाउडली बोलें, सो दैट द वॉइस एंड द साउंड एनर्जी स्टार्ट्स क्रिएटिंग द वाइब्रेशंस इन योर बॉडी, एंड ऑल्सो एनर्जीज ऑफ द चक्रा स्टार्ट्स गेटिंग एक्टिवेटेड। फोर्थ इज, आप जब भी मेडिटेशन कर रहे हैं, ये कभी मत सोचिए कि मेडिटेशन करते वक्त मुझे कोई विचार नहीं आएंगे या मेरा ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा। दैट इज़ वेरी नेचुरल। अगर वो भटक भी रहा है तो आपको उसमें सिर्फ एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है। आपको अपने विचारों की तरफ देखना है और पता करना है कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स व्हाट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस यू हैव. Are you majorly a positive thought thinker, or are you majorly a negative thinker? Once you realize it, you can always change your thought process. In terms of benefit, it helps in your sleeping, it helps in your thyroid glands, it keeps you energetic the whole day, it will give you a balance in your emotions, and mental peace is what it is, that कि आपके emotions stabilize होते जा रहे हैं तो आपको mental peace मिलती जा रही है। Last thing, whenever you are doing the meditation, before starting the meditation, after finishing the meditation, please do deep breathing exercises to channelize your energy in a proper manner and to distribute your energy in a proper manner in your body. तो मेडिटेशन चालू करने से पहले भी 2 से 3 बार आप कम से कम डीप ब्रीदिंग करें, और मेडिटेशन खत्म करने के बाद भी आप 2 से 3 बार डीप ब्रीदिंग करें. Also, there is one more thing that you need to keep in mind when you are doing meditation, कि meditation is a daily process. जिस तरीके से हम ब्रश करते हैं, जिस तरीके से हम रोज नहाते हैं, meditation should also be done on a daily basis to see the ongoing effects and benefits of meditation. अगर आपने 10 दिन करके छोड़ दिया, 15 दिन करके छोड़ दिया, तो फिर उसके कोई बेनिफिट्स आपको मिल नहीं पाएंगे, या मिलेंगे तो भी आप उन्हें नोटिस नहीं कर पाएंगे. इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ.
Like any other activity, daily activity of yours which is a part of your life, मेडिटेशन शुड ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. अगर आप उसको अपनी लाइफ का पार्ट बनाते हैं तभी आपको उसके बेनिफिट्स मिलना चालू होंगे. तो किसी भी चीज़ के बेनिफिट्स मिलने के लिए उसको उस तरीके से अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कीजिए दैट इट बिकम्स अ नेसेसिटी इन योर लाइफ. जैसे ही वो नेसेसिटी हो जाएगी, जैसे ही वो आपके स्केड्यूल में आ जाएगी, आपको उसके बेनिफिट्स, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलने लग जाएंगे. You will start getting the mental peace you are looking for. You will start getting the energy that you want. You will start healing physically as well as emotionally. One more thing, when you are doing meditation, if you have any kind of physical ailment, try and focus your energy towards that part of your body so that the energy आपने meditation से जो energy generate की है वो gently उस direction में move करने लग जाएगी और आपके उस body part को heal करने लग जाएगी. So your physical healing is something which can start instantly through meditation. Emotional healing and emotional balance आने में थोड़ा time लगता है because it takes time for the emotional energy, negative emotional energy to come out and the positive emotions to take place. But physical healing can start from day one of meditation. So these are the ways of doing meditation and these are the benefits of meditation. I hope this all really helps you and if you can follow these simple tips, you will see कि long run में आपको meditation से बहुत फायदा हो रहा है. As an individual, you have changed a lot and you are at peace with yourself. For any more questions, any more queries, you can get in touch with me. I'll again give my introduction. My name is Dr. Neelam Parwani. I'm a Reiki Grandmaster, Advanced Sujuk Therapist, Naturopath, and Positivity Coach, and also the founder of Nature's Grace. You can connect with us on our Facebook page, that is naturesgrace.reiki, or you can contact us on our number 9560424609. We are also coming up with a 3-day retreat in Rishikesh, which is Energy, Magic, and You. So, if any one of you would like to get enrolled for that retreat, which is from 2nd to the 4th of April 2021, which is in a week's time, which is basically focused on your energy and balancing your energy to make you emotionally and mentally strong, you can get in touch for the registrations. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन टुडे. आई होप आप सबको मेडिटेशंस के उसी तरीके के फ़ायदे मिले जिस तरीके के फ़ायदे मुझे मिलते हैं. एंड ऑल्सो वंस यू स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन, थोड़े टाइम बाद लोगों को आपके चेहरे पे भी ग्लो दिखने लगेगा and they will realize that there is something energetically that is changed in you and is then effect will be noticed by others also and you will also be happy when people start commenting कि आपके चेहरे पे कुछ ज़्यादा ही चमक है आजकल. So please do follow these tips and make meditation a part of you because meditation is a very, very important thing. Thank you so much for joining in today and have a great day.